مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں بھی غلطی کا امکان ہے؟ نہیں، غلطی تو اس لیے ہونا کہ صحابی نے اسے سپورٹ نہ کیا ہو. نہیں 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 نہیں، آپ کی انٹرپریٹیشن میں غلطی کا امکان ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ہے کوئی نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ کیوں نہیں لے سکتے ہم؟ آپ اسی پہ کیوں زور دے رہے ہیں کہ وہ زمین پہ تھا؟ اچھا، اس کو آسمان میں لے جا کے کرنا کیا ہے؟ ایگزیکٹلی میں ان کی بات کی وضاحت کر رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے قرآن کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ پڑھا، جب زمین حرام کر دی گئی تھی تو پھر وہ کون سی زمین میں 40 سال تک ٹہل رہے تھے؟ وہ تو حرام کر دی گئی تھی. تو کیا ساری زمین حرام کر دی گئی تھی؟ اب یہ آپ نے کہاں سے مطلب نکالا؟ تو کیا ساری زمین حرام کر دی گئی تھی؟ اب یہ آپ نے کہاں سے مطلب نکالا؟ تو ہمیں ادھر پتہ چلتا، عالم بتاتے ہیں. مانے میں آپ کو صحابی کا بتا دیتا ہوں، آپ سن تو لے. ابن کثیر آپ مانتے ہیں نا؟ الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں. اب مجھے اس ریفرنس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ذوالقرنین کو آسمان میں لے جا کر ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اچھا جی، اگلے ہمارے کالر ہیں، میں جلدی سے لے لیتا ہوں. فہد ادریس صاحب اور اس کے بعد معین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، کیسی طبیعت آپ؟ جی ہاں الحمدللہ. ایسے بھائی آپ کو بھی السلام علیکم، اور عامر بھائی کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور باقی بھائیوں کو. جی مفتی صاحب میرا آپ سے ایک کوشچن تھا. میں اس دن آیا تھا عامر بھائی کی اسٹریم میں، تو لیکن وہ جلدی میں تھے، انہوں نے ہندو بھائیوں سے بات کرنی تھی. میرا یہ سورۃ کاف کے بارے میں کوشچن تھا، 84 آیت کے بارے میں. حضرت یہ بھائی میں شارٹ کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے. حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ذوالقرنین ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، وہ اس دنیا میں نہیں تھے، وہ کسی اور جگہ پر تھے، اور جہاں انہوں نے سورج جو ہے وہ غروب ہوتے دیکھا اور قوم کو دیکھا، تو وہ جی فیصل فہد صاحب، یہ ساحل ندیم صاحب نے تو نہیں بتائی بات؟ نہیں کہہ رہے ہیں میں محکمات سے ثابت کروں گا، یہ آیت محکم ہے، آپ اس کو متشابہ نہ بنائیں، میں دلیل دوں گا کہ واقعی وہ کوئی اور دنیا تھی. نہیں، یہ بات جو میں نے کہی ہے کیا اس میں غلط ہوں؟ یہ ساحل ندیم والی بات تو نہیں ہے؟ سر ساحل ندیم صاحب سے میں نے بعد میں سنا تھا، پہلے آج سے 10 سال پہلے تقریباً ترکی کے ایک ویب سائٹ تھی، انہوں نے یہ جو ہے نا تھیوری بیان کی تھی، لیکن میں نے ساحل ندیم وہیں سے لا رہے ہیں ترکی سے. ٹھیک ہے، میڈ ان ترکی تھیوری ہے. جی اب آپ اس کو ثابت کریں آیے محکمہ. جی فرمائیے. جی میں اصل میں میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ چلو میں بھی ثابت کر دیتا ہوں کہ سبابہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں، وہ جہاں بھی یوز ہوا ہے کوئی بھی جگہ پہ، وہ سبابہ آسمان کے رستوں کے لیے ہوا ہے. لیکن جو 84 آیت میں ہمارے علماء اور کافی زیادہ عالم وہ اس کو اسباب میں لے لیتے ہیں، لیکن اگلی آیت میں اتباع سبابہ وہ رستہ کر دیتے ہیں. یہ چیز نہیں سمجھ آتی، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ڈٹو اسکرپٹ ہے ساحل ندیم کی یہ جملہ، ڈٹو اسکرپٹ، اور کہہ رہے ہیں میں 10 سال پہلے ترکی سے کر رہا تھا. ویری گڈ، ہر بندہ کریڈٹ لے رہا ہے پلانٹ ارتھ پہ. جی حضرت. اچھا جی، تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ سبب کے معنی کیا ہے؟ سبب جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے مفتی صاحب 4-5 جگہ پہ، وہ ہمیشہ آسمانی رستوں کے لیے استعمال ہوا ہے، رسی کے لیے، آسمان پہ جانے کے لیے. سورۃ سعد میں ہو جائے، سن لیجئے، راستہ منزل پر پہنچنے کا سبب ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل ٹھیک، اس لیے راستے کو سبب کہا گیا. عربی زبان میں سبب کا لفظ اوریجنلی راستے کے لیے کوئی نہیں کیا گیا، بلکہ راستہ چونکہ منزل پر پہنچنے کا وسیلہ، ذریعہ، سبب ہے، تو اس لیے راستے کو سببہ بول دیا. لیکن سبب کے جو حقیقی معنی، جو اوریجنل معنی ہے، وہ ہے کسی کام کے کرنے کا کوئی وسیلہ، وسائل، ذرائع، یہ سبب ہے. سبب اور مسبب، کاز اینڈ ایفیکٹ، آپ اس کو جانتے ہی ہیں. تو اب جب کسی لفظ کے اوریجنل معنی جہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں، وہاں پر اوریجنل معنی ہی مراد لیے جائیں گے. اس کے اوریجنل معنی کو چھوڑ کر اس کے سیکنڈری میننگ کو اننیسیسریلی اپلائی کرنا، یہ قرآن کے اور عربی زبان دونوں کے اصولوں کے خلاف ہے. تو اب ساحل ہو یا عدیم ہو یا ترکی ہو یا کچھ اور ہو، ہم اس کو کیسے مان لیں جو قرآن اور حدیث کے، قرآن اور عربی زبان کے اصول کے خلاف ہو؟
मुफ्ती साहब माजरत के साथ, लेकिन मेरे पास 4-5 सहाबा कराम की टेस्टिमनी है, उन्होंने आसमानी रस्ते मुराद लिया। मैं आपको दिखा दूं, शेयर बताऊं आपको? जी, मैं सुनना चाहूंगा जी जी, हो सकता है मेरी जी, मालूमात हजरत मैं एक तो ये है कि रेफरेंस के मैं अपनी राय दे, बाकी आप जिस तरह मना समझे। मैं तो एक तो ये है कि रेफरेंस के बगैर नहीं, क्योंकि असहाब का कौल भी हो तो हम सनद देखते हैं, एक तो ये हाँ, चीज रख लेंगे। मैं तो क्योंकि ऑब्वियसली विद रेफरेंस चाहिए हाँ, मुझको, बिल्कुल क्योंकि जी। साहिल अदीम ने दज्जाल को भी जो है ना वो टक्सीडो बनाकर बड़ा कुछ मौजू रवायात से किया है, तो जी जी इसलिए कोशिश ही है। अच्छा, ये जो सामने आयत है जी जिसमें कहते हैं वो अगले आकर रास्ता करते हैं, ये जरा फहद इदरीस साहब भाई सुन रहे हैं? हाँ, जी इसी ये आयत में जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल इसी आयत हाँ में जवाब है जी। एग्जैक्टली, ये जो रिसर्च है। मैं ये कहूंगा कि इस आयत का तर्जुमा जो है ना वो थोड़ा सा, जी तर्जुमा पढ़ दे भाई। क्या नाम है आपका? फहद साहब जी, तर्जुमा चलो पढ़ मैं तर्जुमा इसको फिक्स कर देता हूँ हाँ जी। जी। जी और हमने इसको जमीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और इसे हर हर किस्म के आसमानी रस्ते अता किए थे, लेकिन ये तर्जुमा नहीं ना बन रहा। एक मिनट। अब हमने ये तर्जुमा किया कि हमने इसको जमीन में इक़्तिदार बख्शा था, और आपका जी तर्जुमा है कि हमने इसको हर किस्म के आसमानी रस्ते अता किए थे। तो भाई अगर आसमानी रस्ते अता किए थे तो इक़्तिदार भी तो आसमान में होगा, इक़्तिदार जमीन में, रास्ते आसमान में। एग्जैक्टली। Confidence comes from knowing your options, especially when it comes to fixed income investing in bonds. तो भाई अगर आसमानी रस्ते अता किए थे तो इक़्तिदार भी तो आसमान में होगा, इक़्तिदार जमीन में, रास्ते आसमान में। एग्जैक्टली। नहीं मुफ्ती साहब, आगे फिर हम उसे ये क्यों कहते हैं? एक मिनट सॉरी हजरत इससे भी ज्यादा एक तो ये नुक्ता है, कुरान का कमाल ये है कि कुरान को अल्लाह ताला ने मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही हिफाजत में रखा हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट बताता है। ये फहद इदरीस भाई 10 साल की रिसर्च जरा बताइएगा, ये सबबा क्या बन रहा है इस जुमले में? सबबा मसलन रस्ते के लिए बन रहे हैं ना? नहीं, वो इसका ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है? क्या बन रही है ग्रामेटिकल पोजीशन? मेरे हिसाब से तो कंफर्म ये है कि आसमानी रस्तों का उसे इल्म था, और आगे वेरी गुड कर रही है कि सबबा। वेरी गुड। ये मिन कुल्ली शैइन और सबबा, ये मफऊल और जार मजरूर, ये आपने अगर आप समझते होते ना, आपकी 10 साल की रिसर्च जो आपने सो कॉल्ड मेरा भाई की माजरत के साथ, वो जाया ना जाती जी। ठीक है। ये जुमला जो है ना, ये जुमला एक मिनट जरा सुनिएगा, हाँ सुन लीजिए, ये सुनिएगा, ये जो जुमला ना, ये जुमला अगर आपको थोड़ी सी भी अरबिक आती हो ना, आपको पता चल जाएगा कि इसका रास्ता कभी भी इस एतबार से बन ही नहीं सकता कि आसमानी रास्ते जो आप मुराद ले रहे हैं। वजह बताता हूँ क्यों। नंबर एक, जो मुफ्ती साहब ने पीछे फिल अर्द का नुक्ता उठाया, और दूसरा व आतईनाहु, और हमने दिए उसको, मिन कुल्ली शैइन, हर चीज में से, सबबा असबाब। अब मिन कुल्ली शैइन सबबा, अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मफऊल बनता है। हाँ, मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि अगर हर किस्म के आसमानी रस्ते मुराद होता ना तो आयत होनी चाहिए थी। अगर सबब से मुराद आसमानी रास्ता ही हो तब तो आयत होनी चाहिए थी व आतईनाहु कुल्ला सबबिन। एग्जैक्टली ठीक है, यहां पर है मिन कुल्ली शैइन सबबा। इसका मतलब क्या है कि मिन कुल्ली शैइन जो है वो तो मुसब्बब है, और सबबा सबब है, और मुसब्बब को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इफेक्ट, और सबबा कॉज। यानी हम जितने भी इफेक्ट्स पॉसिबल है उनके कॉजेज हमने दिए हुए थे। यानी दुनियावी इक्तदार के जो वसाइल हैं वो सारे के सारे जुल्करनैन को मुहैया किए हुए थे। जी आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? आप जी क्या पूछा सवाल? दोबारा बता दीजिएगा मेहरबानी। वेरी गुड। देखिए मुख्तसर मैं बता रहा हूं कि अगर आपका तर्जुमा लेंगे तो आयत बननी चाहिए व आतईनाहु कुल्ला सबबिन। आयत ये नहीं है, आयत है मिन कुल्ली शैइन सबबा, और ये मिन कुल्ली शैइन क्या है? सबबा के मुकाबले में मिन कुल्ली शैइन मुसब्बब है, यानी कॉज एंड इफेक्ट। यहां आसमानी रास्ता मुराद हो ही नहीं सकता। ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज मैं करना चाहूंगा। फहद भाई एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपके हक में मैं वकालत करने लगा हूँ, और वो मेरी अभी नजर पड़ी है हुजूम करने से पहले कि ये चूंकि मौदूदी साहब का तर्जमा यहाँ पे दिया गया है, तो मौदूदी साहब ये राय रखते थे कि कुरान में लफ्ज़ अर्द इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हुआ है, जमीन के लिए भी और कायनात के लिए भी। तो मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट ये मैं सवाल रेज कर रहा हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये
کہ اگر ہم اسیوم کریں فور اے منٹ, اور میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے گرامیٹکلی اسیوم کرنے کی, میں صرف کر رہا ہوں بغیر کسی وجہ کے, کہ اگر ہم یہاں پہ ارتھ کو کائنات اگر ہم اسیوم کر لیں, تو کیا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات کے جو رستے ہیں اس میں سے ہر رستے میں سے اس میں سے ہر چیز میں ہم نے رستہ دیا؟ would that not change something؟ نہیں, دیکھیے یہ گرامیٹیکلی جو ہے وہ درست نہیں بیٹھے گا. میں نے جیسے کہا کہ جیسے ہی آپ رستے کا ترجمہ کریں گے سببا کا, تو من کلی شیئن کا جو لفظ ہے وہ irrelevant ہو جائے گا. یہ یہاں پر اس کا وہ والا ترجمہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم کلّا سببن کہیں, وَآتَيْنَاهُ كُلَّ سَبَبٍ, کہ ہم نے ہر طرح کے رستے جو ہے وہ دے دیے تھے, جبکہ لفظ ہے من کل شیء. تو آپ گرامیٹیکلی اٹ ڈزنٹ ریئلی میک سینس کہ یہ والا ترجمہ کریں, اور میں ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ڈیپ جانا پڑے گا, ورنہ جو بھی آدمی گرامر سمجھتا ہے تو وہ ایک دم اس ترجمے کو ریجیکٹ کرے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس ارتھ کو آپ نے یونیورس مراد لینا ہے نا, یہ ٹھہرے میں ترجمہ ہٹا دیتا ہوتا ہوں, رکیے گا ذرا, کو دقت کرتا ہے پھر. تو یہ اگر آپ نے مراد لینا ہے نا, تو یہ چیز ویلیو, اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی مغرب الشمس کی, کیونکہ یہ ریلیٹو چیز ہے. اگر آپ نے ریلیٹو چیز یہ ہے کہ زمین کے لیے مغرب الشمس ہوتا ہے, شمس اور ان اٹس ان اوریجنل سینس وہ ڈوبتا نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ ہے. تو ظرف کا ہونا تقاضا کرتا ہے کہ زمین کے اوپر. فہد ادریس بھائی گیم آپ سے اوپر جا چکی ہے میرا بھائی, رک جائیں ذرا. میں نے اس دن بھی آپ کو سائڈ پہ اس لیے کر دیا تھا کیونکہ میں لائی آنی چیزوں میں نہیں پڑھتا, مگر مفتی صاحب کی جگہ پر آپ نے کہا میں آ کے سوال کروں گا. یہ کل من کل, میرا بھائی یہ ایک منٹ بولنے دیجیے, بات مکمل ہو جائے پھر میں انشاءاللہ آپ کو موقع دوں گا. جی موقع دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دو چیزیں پوائنٹ سمجھنی ہے جو اس سببہ کو رستہ نہیں بلکہ وسائل اور اسباب بناتا ہے. اس کا جواب یہاں اتباع میں آئے گا. نمبر 1 فی الارض, نمبر 2 من کل شیء. یہ من تبعیض ہے, یا من کیا اس کے لیے ورڈ استعمال ہونا چاہیے حضرت, من جو. تو ہم ایک ایسے پلیٹ فارم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس پلیٹ فارم میں پہلے 30 دن آپ زیرو بروکریج کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے. یہ من تبعیض ہے, یا من کیا اس کے لیے ورڈ استعمال ہونا چاہیے حضرت, من جو بھائی من بیانیہ ہوتا ہے, من تبعیضیہ ہوتا ہے. جی بیانیہ, یہ من بیانیہ ہے. تو یہ مراد یہ ہے وَآتَيْنَاهُ, ہم نے عطا کیا اس کو مسبب, یعنی جو ہے اپنا کیا حضرت آپ نے ایک ٹرم بولی تھی وہ بڑی اپروپریٹ ٹرم تھی, جو ہے وہ مسبب ہے, مسبب. جی مسبب, یعنی ایک آپ کے پاس گروپ ہے, کیٹیگری ہے من کل شیء کی, اس میں سے سببا. اب یہ سببا جو ہے یہ مفعول بنے گا, تو مفعول ثانی, مطلب یہ ٹھہرا کہ دینے والی چیزوں میں سے, ساری چیزوں میں سے جو اسباب تھے وہ ان کو دیے. اب یہ سبب جو ہے یہاں پر بیان ہوا جس کو کہا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. اب جو اسباب دے دیے ہیں, وسائل دے دیے ہیں, اس کو فالو کر. اتنی سی بات ہے. نہیں, اور آگے اگر ترجمہ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے پر کے پیچھے چل پڑے. دیکھیں بھائی, راستے جو ہے نا وہ دیے نہیں جاتے, وہ دکھلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ راستہ دے دیا بھائی, راستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیں. قرآن کریم میں اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. تو یہ جب بھی آپ راستے کی بات کریں گے اس کے لیے دکھلانے کا لفظ آئے گا یا اس پر چلنے کی بات آئے گی, اور یہاں بات آ رہی ہے دینے کی, اس لیے راستہ مراد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ اور کہنا ہے آپ کو فہد صاحب؟ میں آپ سے حدیث شیئر کرنی تھی کیونکہ میرا ساری بیسی اس پہ حدیث پہ, تو وہ سمجھ آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ سب کو بھی آ جائے گی. کرو جی شیئر کیجئے. جی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4807 اگر کھول دیتے ہیں مہربانی ہوگی. میں موبائل پہ اس دن بھی مجھے مسئلہ آ گیا تھا. جی اس دن بھی کبھی بخاری 4807 ہے, 4807 ٹھیک ہو گیا. میں شیئر بھی کر دیتا ہوں, میں شیئر کر دیتا ہوں. اچھا آپ کو مل گئی, میں کر دیتا ہوں, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت نے وہ 10 سال کی ریسرچ حضرت, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. 4807 میں اینڈ میں حضرت اینڈ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ دنیا بدلے کچھ بھی ہو, اس سے میری صحت پر جو ہے نا میں اثر جاننا چاہ رہا ہوں. جی یہ جی لیں جی 480 سوری یار, سوری ریلی سوری. جی
یہ ہے جی حضرت. جی جی بھائی. جی جی اس میں عربک میں لکھا ہوا ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسباب کے معنی ہے آسمان کے راستے. لو رک جائے حضرت مجاہد صحابی ہیں؟ نہیں ایک منٹ رک جائیے. اس کو دیکھتے ہیں کہ من این سجدہ کہاں پر ہے, یہ کس جگہ ہے؟ یہ 4807 ہے جی. یہ دیکھ لیں جی کس جگہ پہ ہے جی. میں پہلے وہ تو دیکھ لیں نا, تبھی تو آگے بات کریں گے. حضرت یہ 4807 ہے. 4807 میں نے بھی کھول رکھی ہے. اس میں کس جگہ ہے بھائی؟ جی جی وہ یہ آپ کی اسکرین پہ ہے فہد بھائی. اسباب کدھر ہے ذرا پڑھ کے بتائیے. میں اوپن کر رہا ہوں, مجھے بتائیں کون سی لائن میں ہے. ادھر فہد بھائی اسکرین پہ دیکھیں. سوری ہاں بتائیں جی. چھٹی لائن میں 1 2 3 4 5 6 یہ جی چھٹی لائن ہے. کدھر ہے؟ اچھا یہ طرق السماء فی ابوابہا, یہ الاسباب طرق السماء فی ابوابہا, یہ کہہ رہے ہیں جی جی حضرت, یہ کہہ رہے ہیں. یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا. ٹھیک ہے. الاسباب طرق السماء فی ابوابہا کس آیت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ سورہ سعد کی آیت کی تشریح کرتے ہیں انہوں نے. سورہ سعد, چلیں اب سورہ سعد پہ چلتے ہیں. تو سورہ سعد کی یہ آیت سجدہ کے بارے میں, ٹھیک ہے, تو وہاں چلتے ہیں اور اندازہ ہو جائے گا کہ کیا بات ہے. سورہ سعد کی کون سی آیت ہے حضرت بتائیے گا؟ یہ ایک منٹ بتا رہا ہوں آپ کو, ایگزیکٹ نمبر میرے یاد نہیں ہے, لیکن میں آیت سورۃ سعد کی سورت نمبر ہے, مجھے یہ بتا دیجیے, مجھے پاس آیت پڑھی ہوئی ہے. رک جائیے پڑھی ہوئی آیت پڑھی ہوئی ہے جی. اچھا جی, تو یہ ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. اس میں جو ہے لفظ اسباب کہاں آیا ہے؟ یا داود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ, اس کے بعد اس میں اسباب کا لفظ کس جگہ ہے؟ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ. ہیلو دوستو, مارکیٹ میں ایک نیا ٹریڈنگ ایپ آیا ہے جس کا نام ہے نوبرا. میں 2 مہینے سے اس ایپ کو یوز کر رہا ہوں. تو آئیے آپ کا لفظ کس جگہ ہے؟ فغفرنا له ذلك, اور اس کے بعد ان هذا اخي له 99, اس میں بھی نہیں ہے. ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط, یہ ہے جنات عدن منفتحۃ لهم الابواب, یہ تو نہیں ہے. اچھا آپ بتائیں کون سی آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں سورہ صاد میں؟ سورہ سعد مجھے یہ بتا دیجیے کون سی سورت ہے, میرے ذہن سے نکل گئی ہے پلیز. یہ 38 جی 38 کی 10 نمبر آیت. 10 نمبر, اچھا جی ٹھیک ہے جی. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب. ہاں جی بالکل, یہ ہے کہ یا پھر آسمانوں اور زمین اور آسمان کی جانب جانے کے لیے. ہاں مجھے ترجمہ کر لینے دیجیے اس کا. یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے, تو پھر انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ. اچھا جی, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسباب کا ترجمہ وہی کریں جو مجاہد نے کیا ہے, آسمان کے راستے, ٹھیک ہے, تو یہاں پر لفظ کیا آیا؟ فَلْيَرْتَقُوا, کہ وہ چڑھ جائیں, ان راستوں پر چلیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بولا تھا کہ جب سبب کا لفظ راستے کے لیے آئے گا تو راستہ دکھانا یا راستہ چلنا, یہ الفاظ آنے چاہیے. الفاظ کیا آ رہے ہیں وہاں پر؟ راستہ دیا. آپ راستہ دیتے نہیں ہیں, راستہ دکھاتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ راستہ چلنا. فَلْيَرْتَقُوا, تو ان راستوں کے اوپر چڑھ جائیں. تو یہاں پر تو ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات, اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان کا اقتدار ان کے پاس نہیں ہے. زمین آسمان کا اقتدار اگر کسی کے پاس ہے تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, اور اس کی وجہ سے اگر ان کے پاس ہوتا تو وہ آسمان کے راستوں پر چل پڑتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اقتدار کو اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے, ذوالقرنین کو بھی نہیں دیا. مفتی صاحب اس میں اس کے علاوہ قرآن پاک کی 22 نمبر
सूरत में इसका क्या करना 40 है में भाई, 2 इसका दफा क्या हुआ? ये बात ठीक तो है, क्या समझ में आ है? गई ना, ये वाली बात समझ में आ गई। मुझे समझ आई, लेकिन इसका मैं जवाब देता हूँ ना कि जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने पहले रस्तों का वो दिया, रस्ते अता किए, वो फिर उन रस्तों की तरफ लगे, मतलब अल्लाह ताला ने रस्ते उन्हें अता अपनी तरफ किए लगा उधर, किए वो फजल हजरत वो तो से। पहले बता चुके हैं कि वहां रस्ते अता करने के लिए क्या वर्ड होना चाहिए था, ये अभी भी कह रहे हैं रस्ते अता किए। ये होना चाहिए था ना कि हमने रस्ते दिखाए, रस्ते बता दिए, रस्ते पे चला दिया। रास्ता कौन अता करता है? वहदैनाहु सबबा। हाँ, अच्छा कुरान में वहदैनाहु सबीला, शाकिर इम्मा कफूरा के हमने रास्ता दिखा दिया, सबील रास्ता है भाई, सबीला का लफ्ज होता है यहाँ पर, हदैना का लफ्ज होता, वो सब तो नहीं है। लेकिन मेरा तो पॉइंट मुफ्ती साहब ये है कि सबबा कुरान पाक में जहां इस्तेमाल हुआ है 99% वो आसमानी मेरे रस्तों भाई, के लिए, कहीं भी ये नहीं है कि जमीन के लिए। मैं आपको एक जाब्ता बता रहा हूं, मैं समझता हूं कि मैं ये, हालांकि मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो कुरान को इस तरह नहीं समझा जाता कि आपने इसको खिलौना बना लिया साहिल की तरह। ये कुरान खिलौना नहीं है कि आप झूठी रिवायतों के जरिए कुरान की तशरीह करते फिरें। कुरान की को किस तरीके से समझा जाएगा, अगर आपको अपनी अकल भी थोड़ी देर के लिए लगानी है तो उसका जाब्ता मैं बताता हूं, वो ये कि एक उसूल है, वो उसूल ये है कि हकीकतु इज़ा तअज़्ज़रत युसारु इलल मजाज। क्या मतलब है इसका? कि जब किसी लफ्ज के जो हकीकी और एक्चुअल माना है, जब वो नामुमकिन हो जाए, नामुमकिन तअज़्ज़रत, जब वो नामुमकिन हो जाए तो उसके जो मजाजी मेटाफोरिकल मीनिंग है अब वो अप्लाई किए जाएंगे। अब यहां पर जो है कुरान में जहां पर असबाब के माना रस्तों के हैं, तो वहां पर हकीकी माना अप्लाई करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मजाजी माना यानी रास्ता इख्तियार कर लिया गया, रास्ते के माना। लेकिन जुल्करनैन वाले किस्से में जो उस लफ्ज का हकीकी माना है, सबब के हकीकी माना सबब ही है, वसीला जरिया, वो अप्लाई करना मुमकिन है, तो उसके जो मजाजी माना है उसको अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। ये कुरान का और अरबी जबान का उसूल है। इस उसूल से आप इनहराफ करेंगे तो कुरान की तफसीर बिर्राय हो जाएगी। सहाबा कराम का आसार मौजूद है ना, हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला से एक दफा पूछा था एक ताबी से, उन्होंने बताया था उसके बारे में कि सबबा का मतलब ये कि अल्लाह ताला ने, मैं सॉरी मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ, इसका हवाला भी दे दी, इसका हवाला भी दे दीजिएगा, इसका हवाला दे दीजिएगा। पहले ये जो बुखारी का आपने दिखाया हजरत, ये पॉइंट मिस ना हो जाए, मैं चाह रहा हूँ इस पर बात एक हो जाए, अगर आए हुए हैं। ये किसने, ये अल असबाब तुरुक समाई फी अबवाबिहा, ये कौन से सहाबी ने कहा है भाई? सही, साहबी ने साहबी के शागिर्द मसलन ताबी ने किया ना, इब्ने अब्बास से मुजाहिद ने। फहद भाई आप ऑनेस्ट हैं, आप सिंसियर हैं, आपने क्या जुमला बोला था? मैं साहबी से भी दिखा देता हूँ, एक मिनट, सही मुस्लिम की 2269 कौन सी किताब, कौन सी, क्या बोला, दोबारा बोले? सही मुस्लिम की 229, सही मुस्लिम की 2269। मुफ्ती साहब आपको वो हाथ तो पता होगा जो अल्लाह के नबी के पास एक दफा एक आदमी आया था, उसने कहा था कि रस्सी आसमान पे लटक रही थी, अल्लाह के नबी उस पे चढ़ गए। चलो यानी ये ठीक है। तो वअरा सबबन वासिलम मिनस समाई इलल अर्ज़, ठीक, इसमें तो मेरा जो ज़ाब्ता था, मैंने जो आपको, मेरा ज़ाब्ता नहीं, मैं वो बताता हूँ। इसमें जो अल्फाज हैं, एक सहाबी अपना ख्वाब जो है वो बयान कर रहे हैं कि मैंने रात में एक ख्वाब देखा और उसमें लंबी है। उन्होंने फिर ये देखा, आगे चलकर ये बात है कि वअरा सबबन वासिलम मिनस समाई इलल अर्ज़, कि मैं एक लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं कि आसमान से लेकर जमीन तक एक सबबन वासिला देखा मैंने। अब यहां पर इसके 2 तर्जुमे कर सकते हैं। एक तर्जुमा ये है कि भाई मैंने एक रास्ता देखा, ये तर्जुमा भी ठीक है। रस्सी देखी, ये तर्जुमा भी ठीक है। क्यों लेकिन यहां पर सबब का तर्जुमा जो उसका हकीकी तर्जुमा है, यानी जिसके माने, जिसको हम अंग्रेजी में कॉज कहते हैं, वो नहीं हो सकता मुराद। इसलिए यहां पर मजाजी माना, यानी जो उसके मेटाफोरिकल माना है वो मुराद होंगे, क्योंकि जो एक्चुअल माना है वो इम्पॉसिबल है। अगर आपने एक्चुअल माना यहां पर अप्लाई किए तो तर्जुमा होगा ही नहीं। मसलन मैं इसका एक्चुअल माना करता हूं लफ्ज़ से सबब के, मैंने देखा आसमान से जमीन तक एक कनेक्टेड जरिया, जो इट डजंट मेक एनी सेंस, सबबन वासिला। तो यहां पर वही तर्जुमा होगा कि जो सेकेंडरी है या मेटाफोरिकल है। आप सब मेरे लिए काम करेंगे, करेक्ट, रिसर्च एनालिसिस करके स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे, तो यहां पर वही तर्जुमा होगा कि जो सेकेंडरी है या मेटाफोरिकल है। मुफ्ती साहब, लेकिन मुझे ये लगता है मैंने जितने हवाले दिखाया वो हमेशा आसमान के लिए। अच्छा, आखिरी मुझे बात करने दीजिएगा, फिर आप इसको शायद ज़ईफ कह दें। इब्ने कसीर ने
आयत नंबर 166 में भी आप यही माना लेंगे क्या? वहाँ भी किसमें? यही सूरह बकरा आयत नंबर 166 आयत 166 आप बोल रहे हैं कि हर जगह, ये बोल रहे हैं कि हर जगह इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबअu जबरदस्त वरअुल अज़ाबा वतक़त्तअत बिहिमुल बिल्कुल अस्बाब। असबाब। जी हाँ जी, तो इसका ये तर्जुमा मुझे पता रास्ते है, कर दे। बस मैंने आपको क्या कहा था 99%, इसके अलावा कुरान पाक में सबब कहीं भी अच्छा, इस्तेमाल नहीं अच्छा, करते। तो अच्छा मतलब कमाल है। मैं कहता हूं कि अगर असबाब के यानी यहां पर क्यों नहीं किया, तर्जुमा ये 99% का मतलब तो ये हुआ कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन है उसमें भी गलती का इम्कान है। नहीं, गलती तो इसलिए हो ना कि साहबी ने उसे सपोर्ट ना किया हो। नहीं 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 नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन में गलती का इम्कान है कि नहीं है? मैं कहता हूँ है कोई नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये क्यों नहीं ले सकते हम, आप इसी पे क्यों जोर दे रहे हैं कि वो जमीन पे था। अच्छा, उसको आसमान में ले जाके करना क्या है? एग्जैक्टली मसला सारा कुछ हल हो जाता है, आपको पता क्या? है नहीं नहीं, इसका हल करें, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। आसमान में बैठा हुआ है, क्या मसला हल हो जाएगा? जी मेरी बात जो जितने एथियस्ट हैं इस चीज पे एतराज करते हैं कि सूरज कीचड़ में डूब रहा था, लेकिन फिर हमें पता चल जाएगा इस एतराज से बचने के लिए आपने जुल्करनैन को आसमान में बिठा दिया। अब एथियस्ट एतराज नहीं करेगा कभी आसमान के सारे रास्ते जुल्करनैन के कब्जे में, जुल्करनैन किधर है? हजरत एक सवाल और मेरा आसमान पे सुमाना सूरज भाई कहाँ से फहद होता भाई है वो देख लिया, मसला तो अपनी जगह पे रह गया। एग्जैक्टली मेरा फहद भाई इस सवाल को मेरा हल करना है कि जुल्करनैन आसमान के रास्ते से गए और सूरज कौन से वो पानी के अंदर डूब रहा था, वो क्या है, वो समझाएं, किधर है सूरज डूब रहा था? जी क्या चीज, सॉरी दोबारा बोलिएगा माजरत। वो ये जुल्करनैन बाहर चले गए रस्तों से, ठीक है ठीक है, जी स्टेप जी 1 ऐसे ही है। अब वो सूरज डूब रहा था, इसको एक्सप्लेन करें क्या हो रहा था पानी में जो डूब रहा था? पानी में डूब ही नहीं था वो जुल्करनैन आसमान के जमीन से बाहर निकले। वो अच्छा जहाँ सूरज जो डूब रहा, सूरज हमेशा ब्लैक होल में डूबता है, उसकी जो रोशनी है वो जमीन के अकॉर्डिंग तो डूबती नहीं है। वो ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट था, वहां वो एक कौम से मिला। नहीं एक यानी ब्लैक आप ब्लैक इस होल तरह के से बता रहे हैं जैसे वो रावलपिंडी के बराबर में वहां से दाया उन्होंने रास्ता काटा, वहां से आगे जो है डेरा गाजी खान आ गया। हजरत ये देखें, मुफ्ती कह रहे साहब हैं जी मुल्हिदों के मसले। एक मिनट फहद भाई गलती से भी मेरा भाई, गलती से भी मुल्हिदों के पास मसले हल करा के ये नहीं बताना कि ब्लैक होल के पास वाला प्लेनेट था, उसकी चुंगी नंबर 52 के ऊपर एक बस में जनाब निकले हैं और उधर सामने सूरज जो है ब्लैक होल के जनाब अंदर ऐसे डूब रहा था जैसे गोल्फ जो है ना बॉल सुराख के अंदर जाती है। फहद भाई ये मसला हल किया है या अपने गले में ऐसा ढोल डाला है जिसका वजन नहीं उठाया जा रहा? ये कर क्या रहे हैं आप? लेकिन ब्रदर मैं तो आपको अच्छा ब्रदर, अच्छा चले एक मिनट चलें, एक और सवाल ले लें हजरत। एक और सवाल फहद भाई ये है, ये जुल्करनैन वाला जो कुरान वाकया बता रहा है ये होता हुआ है ना? हो गया वो। हो गया है, तो सूरज क्यों नजर आ रहा है? ब्लैक होल में तो कोलैप्स कर जाना चाहिए था स्टार, अभी क्या कर रहा है सूरज? ब्रदर ब्लैक होल में स्टार तो कोलैप्स नहीं किया, उसकी रोशनी खत्म हो रही है। आप साइंस पढ़े हो, आपको तो ये पता होना एक चाहिए। मिनट रोशनी का नहीं, सूरज उन्होंने सूरज देखा है, रोशनी नहीं देखी। सूरज की रोशनी और है, सूरज और है। अब फिर आप मेरे साथ वो गेम कर रहे हैं। आपने कहा सूरज, अब मैंने लिटरल मीनिंग पे चलना है कि सूरज देखा है उन्होंने जो पानी में डूब रहा था। आमिर भाई मैं भी इनसे कुछ आप लिटरल क्यों ले रहे हैं, मुझे ये बताओ। हाँ लिटरल क्यों ले रहे हैं ऐसे? वो हजरत उस दिन भी मैंने इनको फारिग करवा दिया था क्योंकि बहुत समय जाया करते हैं। नहीं नहीं ठीक है, असल में जी जी कैसर भाई फहद भाई आपसे मैं एक चीज में जानना चाहता हूँ कि चलिए हम तो आपके मुसलमान भाई हैं, आपने इंटरप्रिटेशन दी, आपने एक ज्योग्राफिया एक कोड्स आपने बता दिए कोड के कहाँ पे जो सूरज गुरूब होता है एंड सो फोर्थ, लेकिन जिन एथियस्ट को लाजवाब करने के लिए या उनके सवालों से जान छुड़ाने के लिए आपने ये सारा कुछ ये हमें क्रिएट किया है, अगर वो आपसे इस चीज़ की दलील मांग लें कि ये जो आपने कोड्स हमें बताए हैं इसकी क्या दलील है, और वो तो सहाबी की बात को नहीं मानेंगे इसलिए कि सहाबी तो आपके लिए हमारे लिए मैटर करते हैं, उनके लिए तो नहीं करते, तो फिर ये मसला आपने हल कैसे किया? ब्रदर हाल तो ये चीजें हमारे मुस्लिम जो है वो ये कैसे हल कर रहे हैं कि वो कीचड़ में डूब रहा था? ये चीज है। मैं ये तो हमने बहुत आसानी के साथ बहुत पहले हल कर दिया कि वो, चूंकि हमने कहा हम कभी मानते नहीं कि वो कीचड़ में डूब रहा था, हम ये मानते हैं कि जुल्करनैन को ऐसा महसूस हुआ जैसा कि जब आप कराची के साहिल पर जाएंगे या बंबई के साहिल पर जाएंगे गुरूब शम्स के वक्त तो आपको सूरज समंदर में डूबता हुआ नजर आएगा,
लेकिन वो समंदर में डूब नहीं रहा होगा, नजर आएगा। कुरान ने इसीलिए वजदहा कर कहा लफ्ज कि उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा पाया। वजदहा का मतलब क्यों है? आपने इस लफ्ज को क्यों इग्नोर कर दिया? और लिंग्विस्टिक फिलॉसफी में इसके लिए पूरी एक्सप्लेनेशन है जिसको फिनोमेनोलॉजी कहा जाता है, कि वो चीज़ें जो आपको होती हुई नज़र आती हैं, जिसमें सूरज का तलू होना, सूरज का गरूब होना एंड सो फोर्थ, तो हम तो उसको फिनोमेनोलॉजी के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि कुरान ने, जैसे भी मुफ्ती साहब ने कहा कि कुरान तो एक्यूरेटली कहता है कि ये उनकी तरफ से बात की जा रही है। कुरान Frame क्लेम of नहीं reference. कर रहा कि सूरज कहीं गरूब हुआ है। जो जी मसला है ही नहीं, आप उसको हल कर पॉइंट रहे ऑफ हैं। रेफरेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग है। एग्जैक्टली अच्छा, दूसरा सवाल, एक तो ये सवाल हो गया, तीसरा सवाल हजरत एक और आमद हुई है। फहद भाई, ये भी मसला आपने हल करना है मुल्हिदीन का, अगर निकल पड़े हैं मसले हल करने के लिए तो ये मसला भी आपने हल करना है। जो जुल्करनैन है वो थे ह्यूमन बीइंग या कोई और थे? ह्यूमन बीइंग थे, लेकिन नबी ने ह्यूमन बीइंग ये थे। क्योंकि हदीस में है वो अल्लाह के नबी को इल्म नहीं दिया गया है, जुल्करनैन आपको दे दिया गया, अल्लाह के यानी नबी को इल्म नहीं दिया गया, आपको इल्म दे दिया गया कि वो कौन से रास्ते थे जिन पर जुल्करनैन चले। मैं अभी तक के हकीकतन मैं साहिल अदीम और आप, मैं साहिल अदीम और आप दोनों की बात ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों की बात से, कि जुल्करनैन को आसमान में बिठाकर हमारा भला कौन सा होने वाला है, मुझे ये बता दें। एक सेकंड होने वाला है, मुझे ये बता दें। एग्जैक्टली हजरत, ये मैं सवाल मेरे सवाल का जवाब मैं मासूमाना, फहद भाई 10 साल की रिसर्च के अंदर एक सवाल ये भी ऐड कर ले, मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरा भाई मुझे ये बताइएगा, जुल्करनैन ह्यूमन बीइंग थे, ऐसे ही है ना? जी जी ठीक है, वो जिस ब्लैक होल के पास प्लेनेट था, वो प्लेनेट जो है वो हैबिटेबल था, यानी वहां लोग रह सकते थे, ताकि कौम से मिले थे, ऐसे ही है? जी जी सूरज तो गया डूब, ठीक है, तो वहां जो ऑक्सीजन है, जिंदगी का है, सारी जो कौम रह रही थी, वो कौन से चार्जिंग पे चल रही थी, या वो क्या क्या सिस्टम क्या था? ब्रदर, अरे हजरत आमिर भाई, उन्होंने ब्लैक होल पे तार डाल लिया था और कुछ नहीं हुआ था, वहां से ले ये समझें कि भाई आपसे ये बात करके ब्रदर, क्या हुआ? फरिश्तों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ह्यूमन बीइंग जुल्करनैन को आपने कहा या मैंने कहा है? अच्छा चले एक तो ये सवाल ले लें, पहले तो ये साबित करना है आपने कि जुल्करनैन ह्यूमन बीइंग थे, आपने माना है। अच्छा, वो कौम जो है वो फरिश्ते थे? मसलन वो अल्लाह ताला ने किसी और प्लेनेट नहीं, मसलन नहीं, फरिश्ते, वो अच्छा, वो कौम कौन थी? वो ह्यूमन बीइंग थे या क्या थे? अच्छा, इसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया तो मैं कैसे बता सकता? मैं कैसे बता दूं? तो ये ब्लैक होल के साथ वाला बाजू वाली खोली थी, ये भी आपको अल्लाह ने बताया कि ये चक नंबर 32 था? ब्रदर, गुस्से से नहीं, तहम्मुल से सुने ना। तहम्मुल से, बोंगी के लिए तहम्मुल नहीं है मेरा भाई। मैंने आपको उस दिन भी इसीलिए साइड पे किया था, आपको मैंने उस वक्त भी मेरा भाई बताया था, ला यानी चीजों में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम, मुसलमान के इस्लाम का हुस्न ये है कि ला यानी और फजूल और बहसों से, कज बहसों से अपने आप और को ये जो दूर आपके साथ इतनी देर गुफ्तगू हुई है ना, ये दरअसल आपके साथ नहीं हुई है, ये साहिल अदीम के नजरिए को एक्सपोज करने के लिए की है मैंने गुफ्तगू। एग्जैक्टली मुझे आपसे कोई सरोकार नहीं था। ये इतनी देर जो आपसे गुफ्तगू हुई है, उस शख्स का नजरिया इस वक्त सड़क पर आ गया कि कितना बोगस है। तो मेरे भाई, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं और लास्ट चांस आपको दे रहा हूं, जुल्करनैन को आसमान में बिठाकर क्या हासिल करना है? अच्छा, मेरा भी एक क्वेश्चन है इनसे ना, अगर मुल्हिदों को सिर्फ एक जुमला, हजरत कमाल की बात यह है कि जब इनसे सवाल रखे गए तो ला इल्मी को दलील बना दी, यानी जहालत को दलील बनाया, जो कि दलील नहीं हुआ करती। मेरा सवाल ये है कि मुल्हिदों को अगर यही बोलना है एंड पे जाकर के इसका अल्लाह ने नहीं बताया, तो पहले ही बोल दो कि मुझे नहीं समझ आ रही। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मुफ्ती साहब, मैं बात कर लूं। लास्ट आपने कहा था कि पहले मेरी बात हाँ फाद भाई। जी बताएं। जी सूरह माइदा आयत नंबर 26 खोलिए जरा अपने पास। ब्रदर, मेरे पास नहीं है ऑप्शन, माजरत है आपसे बहुत ज्यादा। आयत नंबर में खोल देता हूँ, आयत नंबर 26। ये खुद ही बताएंगे उसका क्या मतलब। शेयर कर दिया मैंने, बता दिया, ये स्क्रीन प्ले है, शेयर कर दिया मैंने। कहाँ है? जी, आ गई जी। आपको मुझे बताना है इसका क्या मतलब है, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा करें तर्जुमा, तभी इनको नजर आएगा। जी करता हूँ, हो गया, जूम करते हैं। हाँ,
जी इसका क्या क्या करूं मैं तर्जुमा? आपको मुझे इस आयत का मतलब बताना है। जी अल्लाह ताला 40 साल के लिए इस जी अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया कि ये जमीन आपके लिए हराम करार दी गई है 40 साल के लिए। इस टाइम में वो जमीन में घूमेंगे और कहाँ जी घूम रहे जी थे उसे? जब जमीन हराम कर दी थी तो कहाँ घूम रहे थे? आसमान में? क्या कर रही थी सॉरी? ये सही मुस्लिम भाई वो ब्लैक होल के अंदर एक प्लाट था, साइड कॉर्नर प्लाट, वो जगह थी। ब्रदर से जवाब तो देंगे आप बताइए मुझे सही मुस्लिम साहब, हम अगर आपके फैन ना हो तो क्या हो फिर बताइए। जी नहीं ब्रदर मुझे समझाएं क्या क्या कह ब्रदर रहे थे आप एक ये काम आप करें, मुझे ब्रदर मैं ना इरिटेट हो जाता हूँ बहुत जल्दी। आप एक काम करें, आप इसको चलिए मैं इनकी बात की वजाहत कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं आपने कुरान का तर्जुमा, इस आयत का तर्जुमा पढ़ा, जब जमीन हराम कर दी गई थी तो फिर वो कौन सी जमीन में 40 साल तक टहल रहे थे? वो तो हराम कर दी गई थी। जमीन तो क्या सारी जमीन हराम कर दी गई थी? अब ये आपने कहां से मतलब निकाला? तो हमें उधर से पता चलता आलिम बताते हैं कि वो जमीन का कुछ हिस्सा हराम कर दिया था। मैं आलिम हराम हूं, कर मैं दिया बता रहा हूं कि वहां सबाबा से मुराद आसमानी रस्ते नहीं है, माने। मैं आपको सहाबी का बता देता हूँ, आप सुन तो ले इब्ने कसीर, आप मानते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मानते हैं। अब मुझे उस रेफरेंस से पहले आप मुझे ये बताइए कि जुल्करनैन को आसमान में ले जाकर हमारा क्या फायदा है? मेरा ना सवाल ले का जवाब जाकर दीजिए। क्या फायदा? मुफ्ती साहब मैं बता देता हूँ, मुझे तो सहाबी की एक वो मिल गया, असर मिल गया ना इब्ने कसीर से। ओ भाई फायदा बताएं क्या है, उससे क्या हासिल हो रहा है? तो मुफ्ती साहब अगर असर मुझे मिला तो मैं क्या उसे छोड़ दूं? आपके मुताबिक मुझे वो नहीं मानना चाहिए? चले असर पेश करें। जी इब्ने कसीर में दो असर है, एक हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से और एक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से। इसकी ऑथेंटिसिटी आप माने ना माने वो लहदा मैं बयान कर नहीं देता नहीं एक मिनट ऑथेंटिसिटी पर पहले बात होगी। वो पहले ही आपने कह दिया माने न माने। ऑथेंटिक है तो फिर बात करेंगे ना, ऑथेंटिक ही नहीं तो बात ही क्या करनी। और जिस शख्स का मैं बार बार नाम ले रहा हूं वो मौजू हदीसें पेश करने में माहिर है। कौन? जी बोलें, कहां है वो, उसका रेफरेंस दीजिए। इब्ने कसीर में इब्ने कसीर ने लिखा है आयत नंबर 83 के नीचे तफसीर में, वहां उसने काफी ज्यादा अकवाल लेके आए हैं। उसमें लिखा है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने बादलों को जुल्करनैन के लिए मुसख्खर कर दिया था और तमाम असबाब मुहैया किए थे। एक ये रेफरेंस है और अच्छा एक ठीक है, चले इसी पर रुक जाइए। तो एक मिनट रुके, मैं इब्ने कसीर पे वहीं पहुंच रहा हूं हजरत अली के कौल पर। और सबसे पहले ये देखेंगे कि ये रही इब्ने कसीर। अच्छा जी, तो यहां पर है फातबा सबाबा के तहत या उससे पहले वाली आयत के तहत? आई थिंक उससे पहले वाली है, वो सारी डिटेल्स है नीचे काफी ज्यादा उसमें लिखा हुआ है। अच्छा जी ठीक है। इन्ना मक्कन्ना लहू, और उसके बाद वातईनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और उसके बाद काला। अच्छा जी देखें जी, आपने ये तो ले लिया, अब मैं पढ़ के सुना रहा हूं सब क्या क्या है। काला कतादा अइजन, कतादा कहते हैं वातईनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और उसका तर्जुमा उन्होंने किया मनाजिलुल अर्ज़ि व अअलामुहा, यानी जमीन ही के रास्ते थे वो। कतादा वो भी ताबिई हैं, वो कह रहे हैं जमीन के रास्ते। अच्छा उसके बाद आगे है वआतईनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा तालीमुल अलसिना, यानी मुख्तलिफ ज़बानें उनको सिखा दी गई थी। अच्छा उसके बाद ये है आगे इब्ने लहिया की रिवायत से उन्होंने ये बात कही है कि हद्दसनी सालिम इब्न गैलान अन सईद इब्न हिलाल अन मुआविया इब्न अबी सुफियान क़ाल ली काबिल अहबार अंता तक़ूलु इन्न ज़ुल्क़रनैनि काना यरबितु खैलहु बिसुरैया फ़क़ाल लहु काब इन कुन्त क़ुल्त ज़ालिका फ़इन्नल्लाह तआला क़ाल व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा व हाज़ा अल्लज़ी अनकरहु मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अला काबिल अहबार। वाह, ये देखें, ये होता है दोगलापन। अब एक तो अब्दुल्लाह इब्न लहिया की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न लहिया जो है वो इतने ज्यादा मोतबर भी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है हमने मान लिया। अब उसके बाद वो रिवायत बयान कर रहे हैं कि मुआविया इब्न अबी सुफियान ने काबे अहबार से कहा। काबे अहबार कौन है? कि जो इस्राइलियात पेश करने में एक्सपर्ट हैं। उनसे कहा कि तुम ये कहते हो कि जुल्करनैन ने अपना घोड़ा सुरैया में बांध दिया था,
تو काब ने ये बात कही कि अगर आपको इस पर एतराज हो रहा है तो अल्लाह ताला ने कहा है वआतीनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा वहाज़ल्लज़ी अनकरहु मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अला काबिल अहबार। हजरत मुआविया ने काब अहबार की इस तफसीर का इनकार किया और आप उनके हवाले से कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये देखें जरा, ये आप जब 10 साल की रिसर्च करते हैं तो ये होता है मेरा भाई। अच्छा, और ये आगे 5 मिनट की मुआविया रिसर्च कहते है। हैं, मुआविया आगे काबे अहबार के बारे में कहते हैं कि हमें अंदाजा था इस आदमी के झूठ का, कई मर्तबा हमें अंदाजा हो चुका। When people hear about algo trading, they feel it's super complex. They feel it's for these hedge fund guys, people who are having कई मर्तबा हमें अंदाजा हो चुका। और दूसरा हजरत जबरदस्त, हजरत आप ये चीज देखें कि इन्होंने कहा जी वो लिखा हुआ है कि मुसख्खर कर दिया था सहाब को। वो सहाब जो हैं उनकी सिचुएशन अगर देखनी है, इस सूरह लुकमान में आयत 20 में लिखा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं औ बिल्लाहि मिनश शैतान। जी जी, ओहो, चलिए आप कुरान पे पहुंचे, आप आयत पढ़िए, अब कुरान पे। सूरह लुकमान पढ़ के तेजी से। मुसख्खर कर दिया सहाब को जुल्करनैन के लिए, तो इसीलिए जुल्करनैन चले गए। कुरान में अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरह लुकमान की आयत नंबर 20 में, अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीनों आसमान में सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। इंसानियत को बिल उमूम कहा। मुझे तो नहीं आ रहे नस्ल नदना, मैं जा पा रहा हूँ। मैं आमिर भाई, मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आगे बढ़ने से पहले मैं फहद भाई साहब से फीडबैक लेना चाहूँगा, जो मुफ्ती साहब ने उन्हीं के हवाले को उनके सामने खोल के रख दिया है। आपका क्या जवाब है फहद भाई इस पे? बिल्कुल मेरा जवाब है कैसर भाई ये है कि हमें 2 टेस्टमनी मिल गई। एक मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से ताबी थे कि सबबा से मुराद आसमानी रास्ते है। दूसरी सही मुस्लिम की 2269 से मिला कि सबबा से मुराद आसमान। कुरान पाक में 4 से 5 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मुफ्ती साहब भी मान रहे हैं कि आसमान को अभी ये कह रहे जो भी आपने हवाला दिया है, जो भी आपने हवाला दिया है, मैं आपको इस हवाले से पूछ रहा हूँ जो आपने जो इब्ने कसीर का दिया है, इस पे अब आप फ्यूचर में आप इस पे बज़िद रहेंगे या इस पे आपका केस खत्म हो गया कि इसकी आपको समझ आ गई है? नहीं बजिद ब्रदर, वो देखें बजिद ये है कि मैं ये कहूँ कि यही ठीक है, मेरी सपोर्ट नहीं कोई चीज कर रही, मेरी तो सारी चीजें सपोर्ट कर रही। और अगर उसमें कहा बिना बार का हवाला सपोर्ट कर रहा है, आपको भी पता है। नहीं, अभी वो तो सामने आ गया ना कि वो तो बता दिया गया ना कि हमने यहाँ तक, उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि ये तो हमने जो है उसकी बात को नहीं माना। ठीक है, मैं बड़े नर्म अल्फाज में कह रहा हूँ, यानी कि जिस हवाले को आपने पेश किया वो तो नहीं। ये पता है मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ बात? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बगैर नाम लिए मैं बात करने लगा हूँ कि एक तकरीर में ये बात कही गई और मुझे बड़े मोतबर आदमी ने बात बताई है कि फतह अल बारी में ये लिखा हुआ है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम का सीमन किसी सैयारे पे गिरा। आगे फिर जो है एक वाक़या हुआ, जबकि फतह अल बारी में लिखा हुआ है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का सीमन किसी सैयारे पे गिरा, हालांकि ये बात गलत है। ये इस जुमले के शुरू और आखिर में लिखा हुआ है जी। लेकिन उस तकरीर में ये दोनों बातें पहली और आखिरी नहीं है, वो माहिर है भाई, वो इस काम के लिए माहिर हैं, उनका काम ही यही है। चले, तो मैं उस हवाले से आपसे पूछ रहा हूं कि जो बात आप तक पहुंचाएगी आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, आप कुरान को समझना चाह रहे हैं, बजाते खुद ये सवाल है, लेकिन अब आपको वो हिस्सा पता चल चुका है। मुफ्ती साहब 10 साल की रिसर्च जो है ना, जब 10 मिनट में गारत होती है ना तो बहुत तकलीफ होती है, आई कैन फील दैट। ठीक है, मुझे उस वक्त दुख हो रहा था जब ये भाई थे स्ट्रीम से, जब मैंने इनको साइट पे किया था फहद भाई को, उस वक्त दूसरे नाम से गाल बनाए थे। मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे दुख हुआ था, और क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ फिर ऐसे मौजू पर उलझना जिसका ईमानियात से या ज़रूरियात दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे अपनी एनर्जी को, पोटेंशियल को ज़ाया, तो उस वक्त मैंने निकाला, मुझे बड़ा दुख हुआ था। मगर आज जो ये तरीकाकार कर रहे हैं तो मुझे उस मामले पर ठीक लग रहा है कि मैंने ठीक किया था, मेरा वक्त भी बचा। मगर जिस तरह हजरत ने कहा कि इस वक्त फहद इदरीस भाई, अल्लाह माफ करे, हमारे मुसलमान भाई हैं, ये तख्ता मश्क नहीं है। तख्ता मश्क वो नजरिया है जो साहिल दीन के थ्रू यूथ के अंदर फैल रहा है, तो उस गुमराही को निकालना और उसके दलाइल को डीकंस्ट्रक्ट करके डिफ्यूज करना, सामने रखना, और झूठे हवाले देना, झूठे रेफरेंसेस देना। जी हाँ, तो देखें, हर चीज को आप साइंटिफिक करके पेश करेंगे तो वो ग्लैमराइज तो हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सच्ची बन जाए, तो ये जहन में रखिएगा। ठीक है भाई, चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। अच्छा जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो काफी ताखीर हो गई है जी।
1 मिनट के लिए मैं अभी मान लेता हूँ जुल्करनैन इधर नहीं थे, मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ, दुनिया वैसे ही है, बदल नहीं रही, मैं क्या करूं फिर अब? जी हाँ, वही हमसे उनसे पूछ रहे थे कि भाई आसमान में ले जाके उनको करना, यानी एक भी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि भाई सूरज गुरु जब ब्लैक होल में हो गया तो फिर क्या कर रहा है, सूरज तो चला गया था। उन लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिल रहा था जहां जुल्करनैन थे? आसमान के रस्तों के ऊपर उनको इख्तियार दे दिया गया, तो फिर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ये जो दिमागी जुगाली जो है, इसकी मुझे समझ नहीं आती। ये जो दिमागी जुगाली है, इसकी मुझे समझ आज तक नहीं आई कि हमारे मुसलमान, मैं हजरत, मैं आपके तवस्सुत से बात करें, 3 किस्म के लोग, मैं पर्सनली कहने लगा हूं, 3 किस्म के दोस्तों से हमारे मुसलमान होते हैं। मेरी जान जाति से मुराद ये है कि मैं थोड़ा कन्नी कतराता हूं, कहता हूं भाई आप राजी रहें, मैं दूर हूं। 3 किस्म। नंबर 1 जो फिरका परस्त हों, फिरका वारियत थी, वारियत की बात करें, इख्तलाफ। नंबर 2 वो मुसलमान जो ला यानी फजूल और मुतशाबिहात के पीछे भागे। और नंबर 3 वो लोग हैं कि जो मुसलमान भी रहना है और लिबरल भी और मॉडर्न भी बनना है। ये 3 किस्म के लोग हैं, मैं इनको कहता हूं भाई आपकी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। जी।